कोविड की महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हमने सुधार देखा है, क्योंकि वहाँ की सेंट्रल बैंकें कहें और सरकारों ने अपने खजाने लोगों के लिए या वहाँ के बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए उन्होंने पूरे पिटारे खोल दिए थे, जिसके कारण कि इजी मनी लोगों को उपलब्ध हुई थी और लोगों ने खर्च करना चालू किए थे। Federal Reserve on Sunday after the U.S. Central Bank took the extraordinary step of cutting interest rates almost to zero in an effort to help protect the economy and financial system amid the rapidly escalating coronavirus pandemic. I think that people in the market should be very thrilled. Facing a growing economic crisis that stretches across the globe as schools and businesses shut and Americans hunker down, the Fed took the emergency action ahead of the market open on Monday, slashing its key interest rate by a full percentage point and pledging to buy huge amounts of government debt. All the more remarkable coming just days after the Fed cut rates by 0.5%. The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity, both here and abroad, for some time. The move is designed to keep liquidity in the system and position banks to lend freely. The Fed has been under intense pressure from Trump throughout his presidency to lower rates. थे अभी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस मंदी से उभर ही रही थी कि हमने रशिया और यूक्रेन को युद्ध होते हुए देखा है। इस तरह से लोगों को पैसे दिए गए या पंप किया गया पैसा इकोनॉमी में, उसके बाद लोगों ने खर्च करने चालू किए थे तो काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ चुके थे। सप्लाई डिसरप्शन भी था कोविड का, जिसके कारण कि हमने केमिकल क्षेत्र कह लें या मेटल क्षेत्र कह लें, वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की कीमतों में उछाल देखा। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण अगर हम देखें तो सप्लाई डिसरप्शन में बहुत बड़ी बाधा दोबारा आज आ गई। रशिया अलोन जो है 10% से ऊपर सप्लाई कंट्रोल करता है। रशिया से जो गैस और तेल दुनिया में जा रहे थे वहाँ पर डिसरप्शन हमने देखा है, और कच्चे तेल की कीमतें कह लें या नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने आसमान छूते हुए देखा। An important Monday morning, and it's simple: Europe in retreat, led by natural gas spiking higher. उसके बाद हम देखें कि यूक्रेन भी एक सब्सटैंशियल पोर्शन पूरी दुनिया को व्हीट सप्लाई करता है, और जैसे कि खाद्यान्न की कीमतों में हमने काफ़ी भारी उछाल देखा है। साथ ही साथ हम देख लें तो चाइना में पूरी तरह से कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, वहाँ भी लॉकडाउन थे, तो सप्लाई डिसरप्शन पूरी दुनिया में एक तरह से दिख रहा है, और उसके कारण महंगाई चरम पे है। और इसी महंगाई के कारण फेड के चेयरमैन ने जो उनका सिंपोजियम है, बैंकर्स सिंपोजियम, जैक्सन होल के स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी चिंता है महंगाई को लेकर। और फेड के चेयरमैन यहाँ तक कहा उन्होंने कि वो किसी भी हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को राजी हैं कि ये इन्फ्लेशन को रोका जा सके। क्यों रोका जा सके? क्योंकि अगर बहुत दिनों तक ये इन्फ्लेशन जैसी चिंताएं या इन्फ्लेशन बना रहेगा तो इसकी ग्रेटर पेन इन द इकोनॉमी होने वाली है। अब क्यों चिंताएं हैं, ये सारी चीज़ें सुने आप फेड चेयरमैन के जैक्सन होल सिंपोजियम लेक्चर को। While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater pain. Inflation is running well above 2%, and high inflation has continued to spread through the economy. While the lower inflation readings for July are certainly welcome, a single month's improvement falls far short of what the committee will need to see before we are confident that inflation is moving down. So, we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. July's increase in the target range was the second 75 basis point increase in as many meetings, and I said then that another unusually large increase could be appropriate at our next meeting. We are now about halfway through the intermeeting period. Our decision at the September meeting will depend on the totality of the incoming data and the evolving outlook. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time.
The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. केवल सेंट्रल बैंकों की चिंता नहीं है, महंगाई हर जगह की सरकारों की भी चिंता है, क्योंकि सरकारें अगर महंगाई कंट्रोल करने में असक्षम रहती हैं तो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सरकारों पर होगा और शायद वो सरकारें जो कि मौजूदा सरकारें बैठी हैं वो शायद नेक्स्ट इलेक्शन में रिपीट नहीं करें, क्योंकि लोग जो इस महंगाई से झेल रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है और महंगाई उनकी पूरी सेविंग्स को खाए जा रही है। आपने हिंदी फिल्म का एक गीत ज़रूर सुना होगा जिसमें कि ये बताया गया कि सखी सैयां तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। इन सारी चिंताओं के बीच में एक और बड़ी चिंता जो कि सामने हमारे दिख रही है वो चाइना और ताइवान के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, डिटेरियोरेट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना बराबर इस बात की कवायद कर रहा है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है। ताइवान क्यों इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए? क्योंकि ताइवान में मोर देन 53% जो माइक्रोचिप बनते हैं, जो कि सारे दुनिया में कह लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, मोबाइल कह लें, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या कोई भी आधुनिक मशीन बिना माइक्रोचिप के नहीं चलती है। अगर इस बार ये कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो बहुत ही पीछे, हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम काफ़ी पीछे, मतलब एक तरह से पाषाण काल में चले जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं पूरी दुनिया के सामने जो कि मार्केट के लिए शायद इन शॉर्ट टर्म ख़राब हो सकती हैं। और देखिए हमने अभी कल के ही एक इंटरव्यू में इन सारी चिंताओं के बीच और मार्केट में जिस तरह से करेक्शन हो सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें कही हैं। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। संतोष सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधा चलते हैं संतोष जी के पास में। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार एलेक्स जी, थैंक यू। संतोष सर, आज के शो की शुरुआत में सबसे पहले बाजार पे आपसे राय लेना चाहूंगा। निफ्टी के अंदर में हमने दोनों चीजें देखी हैं, एक बड़ी तेजी भी देखी थी पिछले कुछ समय के अंदर में और उसके बाद कल की क्लोजिंग भी देखी थी। क्या लगता है सर आगे का रास्ता कितना डरावना है, कितना खतरनाक है और क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? देखिए एलेक्स जी, आज तो पहला दिन है जो कि हम इस महीने की एक्सपायरी के लिए लिहाज से ये आज पहला दिन है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सुबरेंट है अभी। लेकिन निफ्टी को अगर देखेंगे, उसके चार्ट को देखेंगे तो एक जो 18,000 के लेवल से हमने करेक्शन देखा था शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ही हो, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि उसके जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा करेक्शन के पैटर्न होते हैं, उसके चरण होते हैं, मतलब कितने चरणों में कंप्लीट होता है, तो वो शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी कॉशियस रहना चाहिए, ऑन कॉशियस नोट इंडेक्स पे। लेकिन स्टॉक में बराबर आपसे बात कर रहा हूँ कि स्टॉक में आपको जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी, क्योंकि निफ्टी जिस तरह से बढ़ा है स्टॉक में वो गेन नहीं आए हैं अभी भी। मिड कैप कह लें या स्मॉल कैप कह लें, वो जो डिफरेंस है वो अभी भी वाइड है और उस डिफरेंस को मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा ब्रॉडर लाइन इंडाइसेस में, और जो भी छोटे मझोले शेयर्स हैं वो कैचअप करेंगे आई थिंक दिस मंथ और सो। तो उसमें अगर आपको कोई थीम मिलती हो तो डेफिनेटली आपने देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उस पे जरूर नजर बना के रखनी चाहिए।